Assalamualaikum everyone. This is Talha with another guest. We have Dr. Hina Karamat, who is the Chief Skills Development Officer at Pakistan Software Export Board. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. It's good to have you here. It's a pleasure. Thank you so much. So, आप अपने बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि how have you come to work at PSAP? What's the journey behind it? Well, it was a long journey of 2 decades. I started my career as an educationist. I was a professor, assistant professor in one of the higher education universities, then as a director of Office of Research, Innovation and Commercialization, where I was more focused on the industry academia partnership. Then it allowed me to explore or navigate the market और जहाँ से मुझे डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिली बहुत से स्कॉलरशिप्स पिन किए आई वेंट अब्रॉड डिड माई स्टडीज़ एंड देन इट अलाउड मी टू नो अबाउट द वर्ल्ड केम बैक टू पाकिस्तान एंड देन आई लास्ट 2 years जो थे आई सर्व्ड इन द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन and I was a part of National Vocational Technical Training Commission, Pakistan. I was looking after the international cooperation and उसके बाद मैंने अगस्त 2025 से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड स्किल्स सेक्शन में ज्वाइन किया. Okay. And what does that section do primarily? All right. So, as a Chief Skills Development Officer under me, there's a national IT workforce skill development, international IT workforce skill development, and capacity building and certification. So, what we do is that, कि academia industry के जो उसके लिंकेजेस बढ़ाना, उसके गैप्स को कवर करना, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, जहाँ पे हमारी जो यूथ है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो इन द लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, स्किल्स हैं, जिसको मीट करके दे वुड बी मार्केट रेडी Right. एंड टू ऑल्सो प्रोवाइड दैम अपॉर्चुनिटीज़ नॉट ओनली कि वो सिर्फ कोई किसी एम्प्लॉयर के पास काम करें बट टू क्रिएट अ स्टार्टअप इकोसिस्टम Right. ऑल्सो कि वो किसी कारोबार के लिए क्या ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो उनको पता होना चाहिए. दे शुड बी मार्केट रेडी, दे शुड नो हाउ टू सेल themselves in the market, do to have a right attitude, soft skills. So we are working on the productive employability, Right. for which international certification is very important. We are focused on that. And then we are also, working with इंडस्ट्री उनकी कंसल्टेशन के साथ, एकेडेमिया की कंसल्टेशन के साथ, उनके साथ बैठ के हम जॉट डाउन करते हैं कि क्या तमाम चीज़ें हैं, कहाँ पे गैप्स हैं, क्या जाना चाहिए और क्या ट्रेंड्स हैं. Right. जी. So I think one of the trends that you might have already mapped कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है AI के skill set की इस वक्त Absolutely. on top of other skill set. So are there any initiatives that you've been taking, especially in case of women that I have heard probably for women? Well, it's a very good question. Basically, हमारा एक काम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ R&D. रिसर्च करना, उसके मुताबिक आगे चलना, व्हाट आर एज़ आई सेड कि क्या स्किल गैप्स हैं. Because our youth has a lot of potential. Whenever Pakistanis they are working, all the Pakistani diaspora when they, you get to know, they all are on the best positions, and they are asset to any organization, and we receive really good. And उसमें ये कि हम लोगों ने बहुत सारे जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किए. कुछ पाइपलाइन में है, इसके साथ इंडस्ट्री में भी चल रही है. सो कुछ माह पहले की बात है, एन आइडिया वाज डिस्कस्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी दे नो कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं. वहाँ से आइडिया निकला कि हमने इंडस एआई वीक 2026 करना है, एंड वी आर, और उसमें तमाम जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक छत के नीचे ला के उनको बताना कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पे गैप्स हैं, व्हाट इज़ द वर्ल्ड दैट इज़ डिमांडिंग, एंड प्राइमरीली we wanted to give this AI ecosystem and skills to the female workforce. कि हमारी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो हाईली क्वालिफाइड हैं. हमें बहुत अच्छा उनकी तरफ से एक जो उनका आप कह लें एम्प्लॉयर्स की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से फीडबैक मिलता है. दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू वर्क. लेकिन वो उस तरह से रिटेन नहीं कर पाती हैं, या उनको अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं पता. दे डोंट नो कि क्या कंप्लायंसेस है, किस तरह से कुछ पेपर वर्क करना है, किन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप. उसमें बाज़ दफ़ा बिकॉज़ ऑफ एक्सपोज़र मर्द हज़रात जो हैं या मेल्स जो हैं वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं. सो ब्रिज दैट गैप एआई फॉर हर के नाम से हमने एक फ्लैगशिप पेविलियन यहाँ पे बनाया जो इंडस एआई वीक चल रहा है. फ्रॉम 9 to 15 ऑफ फरवरी 2026 ये हमारा है. आज इसका फर्स्ट डे था एंड देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. Wow.
इन टर्म्स ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन वी आस्क, जितने भी हमारे मेंटोर्स थे, स्पीकर्स थे, हम लोगों ने उसमें की नोट स्पीकर्स आए थे, उसमें रोल मॉडल्स आए थे, पैनलिस्ट थे, आई मीन लाइक यू जस्ट नेम इट, लाइक यू नो, उसमें हमारे साथ तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, लोकल हमारे साथ इंडस्ट्री वहाँ पे थी। वो तमाम आए और यहाँ के एआई फॉर हर के पवेलियन से उन्होंने तमाम खवातीन जो पाकिस्तान के अक्रॉस पाकिस्तान आई थी, एंड प्राइमरीली फ्रॉम द फार फ्लंग एरियाज, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी थी, जिसमें हायर एजुकेशन, इसमें तमाम वाइस चांसलर्स आए हुए थे, कल भी आएंगे। Wow, okay. यस, Quite a good mix. यस, इट वाज अ मिक्स ऑफ एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे। Okay. इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल पार्टनर्स, जैसे आईटीयू की रीजनल डायरेक्टर खुद आई थी। Okay. इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हैं, व्हाई एम आई नेमिंग देम, बिकॉज दे वर दे ऑल यू नो सॉ कि क्या पोटेंशियल है खवातीन के पास, एंड देन यू नो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी भी है। तो गवर्नमेंट, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन खवातीन को उसकी आगाही नहीं होती है। Right. So we are the ones, it's our responsibility कि through this we are actually telling them कि ये इकोसिस्टम है, ये हम बना रहे हैं, मज़ीद इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और आप इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। Interesting. So, is there going to be like koi website portal application where women can across the whole country can come back again and again just to see what's the update, what's going on, what are the new opportunities for them? यस, एक तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हमारा एक दैट इज़ इंटीग्रेटेड लेबर मैनेजमेंट सिस्टम आईएलएमएस बन रहा है। Okay. That is going to be a unique opportunity जहाँ पे इंडस्ट्री, एकेडेमिया, ट्रेनिंग पार्टनर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। दैट्स अ मार्केट Right. It's a marketplace. where people would come and they would enroll themselves। जितने भी हमारे आईटी के ग्रेजुएट्स हैं वहाँ पे देख सकेंगे कि कौन सी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ सर्टिफिकेशंस हम उसमें दे रहे हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस। एक तो ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिस पे पॉपुलेट होना ये शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह ये जून 2026 से ये आईएलएमएस जो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का, ये प्रॉपर फुल तरीके से काम करेगा। Right. उसके अलावा भी बेतहाशा हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एआई फॉर हर में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी दैट वाज़ कि हमने एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनानी है। Where we are going to share the best practices. It is going to be a complete ecosystem. It's not an event. Right. It is basically we are having the real data। जितने भी हमारे पास लोग आए इंडस्ट्री से, एकेडेमिया से, प्राइमरी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस से, हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा लोग थे। सो व्हाट वी हैव डन लास्ट 2 to 3 मंथ से हम उनका डाटा इकट्ठा कर रहे थे। वो ख़वातीन आ रही थी जिसमें उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। नाउ आफ्टर दिस जो आज भी जिन्होंने रजिस्टर किया, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट किस्म के हमारे थिंक टैंक्स होंगे। वहाँ से उनको हमारी फर्दर इन कंसिडरेशन भी है और हम उस पर बात भी करें कि तमाम जो हमारी कंसोलिडेशन ऑफ एफर्ट्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट वो एक प्लेटफॉर्म से है, दे शुड सी के व्हाट इज़ फॉर देम। सो ये बिल्कुल हम इस पे काम करें। इस तरह की बहुत सी और चीज़ें भी हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। So I think it's the best part about is the IT minister Shazia Khwaja, she has been championing this initiative herself, and there are women like you and others who have the voices in the government who can lead this initiative somewhere जो इससे पहले शायद पॉसिबल नहीं था या देखा नहीं जाता था या सोचा नहीं जाता था. So it's good to have people, especially women there, who are actually advocating for the cause. So, do you think that you would need more women in the PSEB or IT ministry or other ministries who can also advocate for the same cause? What are your thoughts on that? Absolutely. I want to see more women on the decision making positions, and there should be voices, and you know they should be visible, and I believe कि credit जाता है हमारी government को इस बात का, and we absolutely we celebrate the honorable minister IT and telecommunication शिजा फातिमा ख्वाजा की, जिस तरह से वो पर्सनल एफर्ट्स लेके जिस तरह से वो गाइड करती हैं, और ये बेसिकली उन्हीं का एक प्लान था कि हमने इसको इस तरह से लेके जाना है। और आज मैंने उनको देखा कि वो बीइंग अ वुमन एंड आई बिलीव दैट इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे एक खातून है, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान और जहाँ जहाँ लोग हैं उनके लिए बहुत एक, आप कह लें कि इट इज़ समथिंग वी आर ऑल प्राउड ऑफ।
सेम इज़ द केस जितने भी हमारी चाहे वो फ़ातिमा जिन्ना हैं उनको देख लें। इसके अलावा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल ख़वातीन को आना चाहिए, उनके लिए और वो अपने मेरिट पे आना चाहिए और अपने मेरिट पे आके वो यहाँ पे काम करिए और उनका काम नज़र आ रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप देखिए कि किस तरह से दिन रात काम हो रहा है, आपको खुद पता चलेगा कि लीडरशिप से लेके हर बंदा उसमें इन्वॉल्व है, आपको पैशन नज़र आता है, प्रोएक्टिव अप्रोच नज़र आती है। एक पढ़ा लिखा तबका आके लीड कर रहा है, जिसको पता है कि क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है एंड अबव ऑल दिस ऑल बिलोंग्स दिस ऑल इज़ फॉर पाकिस्तान। सो वो एक जज़्बा कम्युनिटी को देने का, काम करने का, लोगों के लिए काम करने का, अपनी आवाम के लिए, अपनी कम्युनिटी को फर्दर एम्पावर करने का, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको। और अब हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, वो बहुत एनलाइटन हो चुकी हैं। तालीम ने उनको वो शऊर दे दिया है कि वो हमसे सवाल कर सकती हैं और हम ये समझते हैं कि बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अपनी कैपेसिटी में आई एम अकाउंटेबल टू देम कि व्हाट वी आर डूइंग। सो आई बिलीव कि ख़वातीन किसी से भी पीछे नहीं है, सिर्फ़ थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और भी जो चैलेंजेस हैं हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको जल्द अज़ जल्द कैप करें, कुछ चीज़ों पर टाइम लगेगा। वी आर बीइंग वेरी रियलिस्टिक बट Yeah. गुड थिंग्स आर हैपनिंग। And I think, yes, you're absolutely right that this sort of gives them the direction. It's a 52% population of the country, which, and I think only a small percentage of that whole population, female population, is in the workforce. तो जो कि हम लोग अभी सिर्फ वाइट कॉलर जॉब्स की बात करें, देयर इज़ अ होल वर्कफोर्स इन दी हमारे देहातों में बहुत अरसे से ख़वातीन काम करती हैं। नाउ दे हैव देयर ब्रिक इन कॉटेज इंडस्ट्री में वो काम करती आ रही, एंड नाउ दे कैन स्टेप अप फ्रॉम देयर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, right from the Balochistan till the interior Sindh and interior Punjab. So all they need is that direction. Where and especially हमारे culture में एक वो चीज़ है कि women tend to believe when the other women are saying it. They have that kind of trust and confidence. So I think this is going to be that play that pivotal role in their own grooming and of course mindset change. पाकिस्तान का एक बहुत यूनिक कल्चर है और जितनी डाइवर्सिटी है वो उसकी खूबसूरती है। और जिस तरह से पाकिस्तानी कौम रिज़िलिएंट है, उसकी ख़वातीन जो उन्होंने शाना बशाना मर्द हज़रात के साथ हमेशा काम किया, चाहे हम अपने इंडिपेंडेंस से देखते हैं आज तक। और जहाँ तक आप हमारी रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, तो वो ख़वातीन दे आर डायनामिक, दे आर लाइक दे आई बिलीव कि हम 1% भी शायद उनकी तरह ना दे सकें, जिस किस्म के एक्सट्रीम हालात में और जिस तरह कोई एडवर्सिटी में उन्होंने सर्वाइव करके जहाँ पहुँचा, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं। बिल्कुल। एंड मेरे ख़्याल में वो हमसे ज़्यादा प्रोएक्टिवली चीज़ों को परस्यू करती हैं और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं देहात में, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, कहीं पे भी आप देखें, बलूचिस्तान, चाहे वो एक आम सिलाई कढ़ाई कर रही हैं या अपने घर में बैठ के उन्होंने अपना एक बाज़ार या अपने लिए कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, वो हमसे बहुत आगे हैं और मज़ीद हम गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी उन तक जाए, उनको पता चले, उनके पास वो तमाम जिस तरह आपके चैनल के तवसुत से उनको ये तमाम चीज़ें पता चले कि आपने ये स्मार्टफ़ोन्स आजकल अगर आप देखें तो हर एक के पास है, उस पे आपने एक क्लिक आपके पास पूरी दुनिया है। एंड आई नो कि जिनके पास अगर एजुकेशन नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मली उनके लिए हम बहुत से प्रोग्राम्स, मेंटोरिंग प्रोग्राम्स भी हैं। सो जितनी भी हमारी देहाती ख़वातीन हैं, एज़ आई सेड कि दे आर वेरी रिसिलिएंट। Yeah. उनके लिए भी बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम कि वो किस तरह से हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकती हैं, बहुत से सॉल्यूशन और सर्विसेज में वो आ रही हैं, हम उनको मज़ीद उनकी मेंटोरिंग करें। सो वी आर ट्राइंग कि हमारी रीच उन अनएम्प्लॉयड वुमेन पे भी हो, फ्रीलांसर्स फ्री के लिए भी हम काम कर रहे हैं, घर बैठे वो कैसे कमा सकती हैं, वो कौन से हुनर हैं जो उनके पास होने चाहिए, तो वो उस पे मज़ीद वर्किंग कर सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और हम इसको पूरा एक आप कह लें कि प्लान लेके आगे चल रहे हैं, साइड बाय साइड तमाम जितने भी सोसाइटी के सेक्शंस हैं, उसको हम एड्रेस करें, प्राइमरीली ख़वातीन और यूथ। I think it's amazing, and we are at the stage in the global economy जहाँ पे एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ probably the global economic shift के साथ we can be at the position
जहाँ पे हम एज अ होल एज अ नेशन वी कैन बी एट द forefront and we can do the leapfrog through technology economically, socially. And kudos to the Ministry of IT Telecom, you, the IT Minister, everyone who has been playing a huge role, pivotal role in this initiative. So thank you very much for being with us, Dr. N. थैंक यू सो मच। आई मीन इट्स माय प्रिविलेज एंड आई बिलीव आपके थ्रू बहुत से लोगों को जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी हमारी वेबसाइट्स, हमारे सोशल मीडिया को देखें। आपके लिए बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है कि जिससे आपको पता चलेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। विथ जस्ट एक क्लिक, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी इज़ जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम यू। प्लीज़ डू अप्लाई, आप रीच आउट करें एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you for being with us.